Good evening, everyone. So today we are starting with the constitutional bodies, and in constitutional bodies we will be discussing almost all bodies. For example, like Financial Commission, CAG, UPSC, SPSC, Election Commission, and etc. Okay. So first of all, let us start with the Finance Commission. So anyone can tell me the article of the Finance Commission? So Article 280 is the article of the Finance Commission, and it is constituted by the President every 5 years. Okay, and how many members are there in the Finance Commission? Five members. Yeah, there are 5 members. Okay, one is chairman, another 4 members are there. So in total, there are 5 members, and they are appointed by President, specialized. President. Yeah, correct. Okay, so they are appointed by the president, and the term of the Finance Commission is 5 years. actually it is not fixed, and that is as per the president only, so it is not fixed. Okay. One question is there, like the members of the Finance Commission are not allowed to have any further employment. True or false? Don't know. Maybe false. Anyone else? They are allowed to have the further employment or not? They are allowed. Okay, कोई अपॉइंटमेंट हो सकता है, सो दे आर अलाउड. ठीक है. उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन होता है फिनांस कमीशन का, एनीवन कैन टेल मी कि क्या क्वालिफिकेशन रहता है फिनांस कमीशन के मेंबर्स का? ओके, सी क्या होता है, जैसे जो फिनांस कमीशन है इसका जो क्वालिफिकेशन है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द क्वालिफिकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो पार्लियामेंट है उनको ऑथराइज किया गया है कि दे कैन इंश्योर देयर क्वालिफिकेशन. सो इन दैट इफ दे आर टोटल 5 मेंबर्स, तो उसमें से जो चेयरमैन होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फिनांस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? Having experience in public affairs. करेक्ट. सो पब्लिक एक्सपीरियंस, पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बाकी जो मेंबर्स हैं उनको फिनांस, किसी को फाइनेंशियल मैटर्स, इकोनॉमिक्स, एंड जो हाई कोर्ट का जज हो वो सब. ठीक है. तो टोटल 5 मेंबर्स हैं और 5 की अपनी 5 कैपेबिलिटीज एंड उनका एक्सपीरियंस है. ठीक है. देन एनीवन कैन टेल मी द फंक्शंस ऑफ द फिनांस कमीशन, कि उसके क्या क्या स्पेसिफाइड फंक्शंस है? डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यही मतलब रिकमेंड करता है. ओके. along with this any more functions are there जो किसी को याद हो इसके अलावा? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांट्स इन एड वाला जो होता है आर्टिकल 275, रिमेंबर स्टेट्यूटरी ग्रांट्स जो होते हैं वो यही इंश्योर करता है. फर्स्ट. सेकंड में जो नेट प्रोसीड्स होती है टैक्स की बिटवीन द सर्टेन स्टेट, ये शेयर करवाते हैं. थर्ड इज जो कोई भी मैटर प्रेसिडेंट इनको देगा फाइनेंस कमीशन वालों को रिगार्डिंग द फिनांस, सो दे हैव टू सॉर्ट आउट दैट एज. ठीक है. एंड बाकी इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को दे देते हैं, एंड प्रेसिडेंट आगे दोनों हाउसेस के पास ये रिपोर्ट्स इनको सबमिट कर देते हैं. So last question from the Finance Commission is that the recommendations made by the Finance Commission is obligatory in nature. True or false? False. False. So yes, okay, जो recommendations होती है they are not obligatory in nature, rather they are just advising, they are not binding. Okay, but as a convention जो government है वो उनको accept कर लेता है, it doesn't mean कि they are binding in nature. Okay, any other question from Finance Commission? Anyone have if any other question? And also who constitutes the Finance Commission? हर 5 years में जो constitute करता है वो कौन कहता है? Who is that body? Presidential order.
by presidential order. करेक्ट. ओके, सो प्रेसिडेंट उसको कंस्टिट्यूट करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, स्पेसिफाइड एज जो है वो हैंगिंग की हुई है, अपॉइंटमेंट अलाउड है, फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. Now next is election commission. So anyone can tell me the article of the election commission? 324. 324. Part Okay, so 324 is the article number of the election commission, and who appoints them? by president. By president. And what about their salary? जो इनकी salary होती है election commission की, वो कैसे होती है decide? That is also determined by president. It is same as Judge of Supreme Court. Is same as the judge of the Supreme Court. ठीक है, president नहीं, judge की तरह होती है, तो parliament CFI की तरह होता है उनका, CFI पे that would be charged. ओके, सपोज जैसे जो मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होता है इलेक्शन कमीशन का, दे हैव अ डिस्प्यूट. ऑन वन साइड देयर इज ईसी, सीईसी मींस इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ होता है, एंड ऑन अनदर साइड देयर इज इलेक्शन कमीशन. तो नाउ देयर इज सम डिस्प्यूट, देन हाउ वुड बी सॉर्टेड? लाइक प्रेसिडेंट आएगा बीच में, पार्लियामेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाउ इट विल बी सॉल्व? एनीवन? बेसिक क्वेश्चन है कि एक साइड पे सीईसी है, दूसरी साइड में दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो अब इनका मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा? ओके, सो सी टोटल 3 मेंबर्स होते हैं इसमें. ठीक है, जिस साइड पे मेजॉरिटी आ जाएगी, द साइड विच विल हैव द मेजॉरिटी विल विन द केस, तो उनकी उस टाइम में चलेगी. ठीक है, मेजॉरिटी से डिसाइड होता है. देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ प्रेसिडेंट, नो सुप्रीम कोर्ट, नो नथिंग, no one else. Okay, only majority will sort out the case. Now what is the age for the election commission, या tenure का क्या system रहता है election commission का? 6 and 65 years. Correct. So it is 6 and 65 year, which would be the earlier will be the case. And how many members are there in the election commission? Total कितने होते हैं election commission में? कितने भी हो सकते हैं, determined by the president from time to time. Yeah, determined, but at present there are 2 members plus 1 chairperson. Okay. Now next let us start with the CAG. So what is the article for the CAG? 148. Appointed by? President. Okay. Who is the guardian of public purse? Is it Finance Commission or CAG? CAG. CAG, correct. And what about the term? 6 years or 65 years. Correct. And what is the purpose of the, what is the process of the removal? Same as Judge of Supreme Court. Same as a judge of the Supreme Court. Okay, then Supreme Court की जो जज को जब रिमूव किया जाता है, तो what are the basis? Like कौन से grounds पे he can be removed? Misbehavior and incapacity. Correct. Okay. And what about the removal? Like, is it on the pleasure of the president? No, not. No, because when we discussed कि it is same as the judge of the Supreme Court, so there is no chance of the pleasure. ठीक है? Pleasure किसका होता है? कोई 2-3 bodies या एक आधी कोई body ऐसा बता सकते हैं जिसका removal जो होता है वो president के pleasure पे होता है. General of India. General or Advocate General.
नहीं, एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल का नहीं होता है, एडवोकेट जनरल का रिमूवल गवर्नर के उस पे होता है, मतलब लाइक गवर्नर के फैंसीज पे होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का जो रिमूवल है दैट इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। What about the reappointment? Is there any case of the reappointment in case of the CAG? हाँ नॉट एलिजिबल। हो सकता है। Can you please speak one by one? क्या बोला आंसर आपने? Yes, he can be reappointed. Okay. Anyone? Not eligible for reappointment. Okay. और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो? See, there is no eligibility. Even cannot work after removal from the post. He cannot join any government or profitable post. Yeah, ठीक है। Just remember, फिनांस कमीशन के अंदर तो रीअपॉइंटमेंट है, कैग की केस में रीअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। नो, जस्ट लाइक ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो जस्ट मेंशन सब लिया, ठीक है। ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। एज वी हैव सीन, फैक्ट्स में तो वही है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वो हेड होता है, गार्जियन है वो पब्लिक पास का, ठीक है। रिमूवल इज सेम लाइक द सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है। सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। रीअपॉइंटमेंट नो। देन व्हाट अबाउट द सैलरीज एमोल्यूमेंट्स ऑफ द कैग? Same as, no, sorry. या सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। CFI पे चार्ज होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द पावर ऑफ द कैग? क्या क्या पावर्स है कैग के पास? ये हमारे जो तीनों अकाउंट्स हैं, कंटीजेंसी, कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट, इन तीनों को वो करता है, स्क्रूटिनी करते हैं, इनका एग्जामिन करता है, फिर रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। यस, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, कॉन्टिजेंसी फंड है, या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वाला जो फंड है, इन तीनों की अथॉरिटी जो एक्सपेंडिचर की है दैट लाइज विद द प्रेसिडेंट, सॉरी दैट लाइज विद द कैग। ओके, सो हियर कम्स वन क्वेश्चन, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो कौन रेगुलेट करता है? CAG. नो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन रेगुलेट करता है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट करेगी। एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उससे कुछ भी अगर आपको अप्रोप्रिएट करवाना है, सो दैट इज डन बाय पार्लियामेंट। ओके, सेम वाइज जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है दैट इज रेगुलेटेड बाय द CFI, सॉरी प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शन से वो रेगुलेट होता है। सो अगेन जो कैग होता है इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स है। यस, फॉल्स। ओके, सो उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सेम लाइक जैसे फिनांस कमीशन हो गया, इन दोनों की रिकमेंडेटरी होती है, एडवाइजरी नेचर की होती है। सो देयर इज नो कंपल्शन टू like comply with those opinions, with those suggestions. Okay, that depends ki how those opinions are, then they can proceed with them. Statutory, and there is one more, discretionary grant. So anyone can tell me something about statutory and discretionary grants? स्टैट्यूटरी ग्राउंड अपने आर्टिकल 275 में मेंशन है, शायद वहां से मिलती है। डिस्क्रिशनरी वाले शायद फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है, यूनियन दे या ना दे, कुछ ऐसा रहता है।
नो 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 डिस्क्रिशन जब उसके नाम में ही है तो हाउ कैन फिनांस कमीशन कैन रिकमेंड? ये डिस्क्रिशन यूनियन का होगा ना कि दे या ना दे, वो तो रिकमेंड में तो निकल जाएगा ना। फिनांस कमीशन रेगुलेट करता है स्टेट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। जो सी क्या डिफरेंस क्या पहले तो स्टेट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में क्या डिफरेंस, क्या बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में? स्टैचुरी मतलब किसी लॉ में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से मेंशन होगा कहीं ना कहीं, मतलब क्या होता है सी जैसे जो स्टेट्यूटरी ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, ये कब दिए जाते हैं? ये सभी स्टेट्स को नहीं दिए जाते हैं, जो स्टेट डायरेक्ट नीड में है सिर्फ उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वेयर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स इज समथिंग लाइक जिसको देना है दे दो, ठीक है, मतलब लाइक एटमोस्ट आपका जितना भी विश हो सकता है यू कैन फुलफिल इट हियर, ओके। लेकिन स्टेट्यूटरी अकाउंट्स के लिए टोटल अकाउंट्स बनते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि कौन से स्टेट है जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सो पुअर एंड इट रिक्वायर्स लाइक अर्जेंट व्यू एंड अर्जेंट हेल्प फ्रॉम द स्टेट। तो उनमें से कुछ चुनिंदा जो स्टेट्स होते हैं जिनका स्टेटस बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइक ना, क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं उस पर फिनांस का रोल नहीं होता है। स्टेट्यूटरी ग्रांट्स जो ग्रांट इन एड हम लोग पढ़ते हैं 275 में, वो फिनांस कमीशन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन और रिपीट है कि जो फिनांस कमीशन है उसकी जो लाइक जो रीअपॉइंटमेंट है इज देयर और नॉट? हाँ हाँ करो, कितनी बार करो, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है शायद। या ठीक है, तो उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दे आर एलिजिबल। बट व्हाट अबाउट कैग, इज ही एलिजिबल? फर्दर ऑफिस में नहीं हो सकता मतलब। Yeah, okay, so further employment is not there. Okay, now two more bodies are left from this, no? Okay, UPSC and SPSC. So anything about UPSC, Union Public Service Commission, for which you are preparing? कोई 5 to 6 points regarding UPSC. मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग होता है ये, आर्टिकल 315 से 323 में दिया है। एज पर 323 प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है कि पूरे साल में क्या किया, क्या परफॉर्मेंस रहा। और मेंबर होते हैं इनके, मतलब 10 मेंबर होने चाहिए, कुछ ऐसा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो भी and अपॉइंटमेंट्स members होती are है appointed by the state. पब्लिक सर्विसेज में ना, जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो यूपीएससी करेगा, लेकिन जो उनकी सैलरीज होंगी और वो सब होगा ना, वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इन्हें, यूपीएससी को, और इनका टेन्योर है 65 ईयर्स। और फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है ऑन ये मिसबिहेवियर पे। फिर वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन सुनाएगा तो वो बाइंडिंग होगा। ये जो आपने बोला है सर 665 वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई लॉ वगैरह बना रखा है इन्होंने उठा के? ये तो अलग से इन्होंने सर एक्ट दिया होगा ना, फिर उसमें ऐसा चेंज कर देंगे ऐसा, क्योंकि काफी सारे हम्म। अच्छा, ये जो एडवाइस वगैरह देते हैं यूनियन को, ये बाइंडिंग होता है क्या नहीं कमीशन का? यूपीएससी का
नहीं होता हाँ तो नहीं। हाँ, बट एक है इसको प्रिविलेज, मतलब इन्होंने जो दिया है वो ठीक है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो आपको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि आपने यूपीएससी को सुपरसीड क्यों किया या उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। एक सेफगार्ड है यूपीएससी में। There are two grounds for the removal of the members of the UPSC. Same like the judge of Supreme Court. True, false? फॉल्स, ओनली मिसबिहेवियर पे है। Only misbehavior पे UPSC वाला. Is it? See, there are many grounds. ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले या हाई कोर्ट वाले में there are only two cases: incapacity plus misbehavior. Though they both of them are not defined in the constitution. But as per the UPSC के लिए there are 4 cases, and among them जो misbehavior वाला case है उसमें तो it is binding for the जो वो members हैं, ठीक है, वो सीट में नहीं बैठ सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट है उसको फाइनल नहीं कर देता कि एक्चुअली में दे आर चार्ज्ड और नॉट, ठीक है। सो 4 ग्राउंड्स में फर्स्ट ग्राउंड इज इंसॉल्वेंसी, देन सेकंड वन इज कि वो अपनी ड्यूटी से बाहर का मीन्स दे आर हैविंग सम पेड एम्प्लॉयमेंट का अदर सोर्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन थर्ड वन इज कि उनका इन्फॉर्मिटी है माइंड का या साउंड बॉडी का, ठीक है, मीन्स समवेयर दे हैव बीन डिस्पेयर्ड। एंड फिर नेक्स्ट वन इज मिसबिहेवियर। सो मिक्स बिहेवियर वाले केस में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट उनको फाइनल करती है तब तक वो उसमें मतलब अपनी पोस्ट को नहीं ले सकते, तब तक वो पोस्टलेस हो जाते हैं। हाँ, ये जो जोकर सर ने पूछा था ना कि 665 उन्होंने बताया, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 316 क्लोज 2 में कि जो यूनियन के चेयरपर्सन या मेंबर होंगे वो 665 रहेगा, और जो अपने स्टेट वाले या जॉइंट वाले होंगे ना उनका 662 रहेगा। तो ये मेंशन है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में। The members of the इनका री एलिजिबल अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? यूपीएससी, एचपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह। यस, मतलब जो चेयरमैन होता है यूपीएससी उसका नहीं होता है, बस बाकी सभी का होता है। जैसे अगर मेंबर्स है यूपीएससी के तो दे कैन बी द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। अगर स्टेट के मेंबर्स है तो दे कैन बिकम द चेयरपर्सन, उसका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है उसका वो बन सकते हैं। एंड ऑल्सो जो मेंबर है वो यूपीएससी के भी चेयरपर्सन बन सकते हैं और उसके मेंबर भी बन सकते हैं। सो यस, फॉर द एम्प्लॉयमेंट अलाउड है। हाँ सही है। लेकिन जो बस यूपीएससी वाले होते हैं, मतलब यूपीएससी वाले स्टेट की सर्विस में नहीं जाएंगे, बिकॉज डिग्रेड नहीं किया जा सकता, अपग्रेड का ऑप्शन इससे। बट दे कैन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ना, सिर्फ चेयरपर्सन बोल रहा हूँ, मतलब यूपीएससी। कोई और टाइप की, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जैसे वो इसमें पब्लिक सर्विस में आने के बाद वो किसी और पोस्ट पे नहीं जा सकते। हाँ उसमें नहीं जा। National Commission for Scheduled Caste is a statutory body. True, false? False. 340 में Then under which are 339 338? 338 या 39? 338 है ना? 338 में SC है, 338A में ST एंड 338B में
OBCs. एनसीबीसी को कौन से CAA से इंक्लूड किया है? वन जीरो टू 104. अरे 102 है सर। 2 2 है 2। 4 से तो कुछ और हुआ है ना? एंग्लो इंडियन 4 से ये वाला हुआ है जो 10 साल के लिए बढ़ाते हैं ना, एंग्लो एक्सटेंड करते हैं रिजर्वेशन SC/ST के लिए, और फिर हाँ 104 से इस बार एंग्लो इंडियन के लिए हटा दिए। हाँ। और 5 से क्या हुआ है, जो ओबीसी वाली थी ना, वो वापिस जो स्टेट से पावर छीन ली थी कि स्टेट लिस्ट होती है ओबीसी की, वो प्रेसिडेंट करेंगे। वो अब दोनों को है, मतलब प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं और स्टेट वाले भी कर सकते हैं। तो 102 और 105 लिंक है, मतलब याद रखना है इसको। 105 पास हो गया है क्या? पास हो गया है सर लगभग, मेरे हिसाब से। मैंने जहाँ लास्ट पढ़ा था, बाकी देख लेता हूँ एक बार। आई हैव हर्ड के 104 ही तक हुआ है। नहीं 105 तो हो गया, पिछले सेशन में हो गया था वो तो। 105 हो चुका है। अच्छा अच्छा। Special Officer for Linguistic Minorities comes under the Ministry of Home Affairs. True, false? False. Ministry of Minority Affairs. And comes under which article? 350B. And what Yeah. about the अमेंडमेंट से आया नहीं ये वाला आर्टिकल, 7th अमेंडमेंट से शायद कुछ हाँ हाँ 7th Amendment 1956 आया। and if you can tell the part as well? पार्ट 18 Part 17. 17 हाँ। कि 18 में इमरजेंसी है, 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 5th में सेंटर एग्जीक्यूटिव, 6th में वो आ जाएगा सब कुछ स्टेट वाला। और व्हाट इज द पार्ट 4A? Fundamental duties. FD Any other questions from this constitutional bodies? Else we'll move to the non-constitutional bodies. So if anyone have anything, let us discuss that. Okay, last question. What is the article of the GST Council? Article 279A शायद। Speak again. 279A। या 279A, ठीक है। बाकी जो SPSC होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके मेंबर्स का? SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं बट या रिमूवल प्रेसिडेंट का होता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर का होता है। एंड उनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं SPSC के वो Consolidated Fund of State. ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट पे चार्ज होते हैं उनके फंड। ओके, देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है मेरा। हाँ, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये क्या स्टैट्यूटरी है, क्या है मतलब क्या? स्टैट्यूटरी JPSC इज हाँ याद रखना, ये वाला ना स्टैट्यूटरी है, बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है।